toss a coin. If a coin is tossed, right? तो उस पर हेड और टेल आने की पॉसिबिलिटीज बराबर हुआ करती है. So a coin on which the head and tail are equally likely to occur is known as an unbiased coin. Right? Bias means किसी को फेवर करना, और अनबायस्ड का मतलब किसी को फेवर नहीं करता. हेड और टेल दोनों के चांसेस इक्वल हुआ करते हैं. So if in the question is given that a coin is tossed, in class 10 it is understood that the coin is unbiased. Right? That means the probability of getting a head will be equal to probability of getting a tail. Or in other words, we can say that the head and tail are equally likely to occur. Right? Similarly, if a die is thrown, if he says a die is thrown, that means a fair die is thrown. Right? फेयर का मतलब रंग में गोरी नहीं. फेयर का मतलब हुआ करता है कि इस पर 1 2 3 4 5 6 के आने के चांसेस बराबर हैं. That means all these outcomes 1 2 3 4 5 6 are what? Equally likely. If a pack of cards is drawn, if a pack of cards is given and from that pack of cards a card is drawn, so the pack of cards है ना, right, it is a well shuffled pack of cards, well shuffled deck of cards. Pack of cards or deck of cards well shuffled means अच्छी तरह से फेटा हुआ है. That means all the 52 cards are equally likely to be drawn. तो आपको ये वर्ड याद रखना है, equally likely. Right? जिनके चांसेस बराबर हों उन आउटकम्स को हम equally likely कहते हैं. ठीक है. अच्छा, जैसे if we throw a die, so when we throw a die we may get either 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6. Right? Getting 1 is an elementary, getting 2 is an elementary event, getting 3 is an elementary event. क्या 1 आने की probability 1/6 है? Probability of 2 will also be 1/6. क्यों? Out of these 6, 2 is only once, so 1/6. Probability of 3 will again be 1/6. Probability of 4 will be 1/6. Probability of 5 will be 1/6. Probability of 6 will be 1/6. So 1 2 3 4 5 6. Each outcome individually is known as elementary event, and the probability of all the sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment is equal to 1. Right? Probability of 1 plus probability of 2 plus probability of 3 plus probability of 4 plus probability of 5 plus probability of 6 is equal to 1. Similarly, if we toss a coin, that means if we toss an unbiased coin, then getting a head and getting a tail, these are two possible outcomes, and each outcome is known as elementary event. So probability of head is 1/2, probability of tail is 1/2, and their sum will be 1. Next, in a pack of cards there are 52 cards, right? So probability of ace of hearts is 1/52. Probability of 2 of hearts is 1/52. Probability of 3 of hearts is equal to 1/52, and so on. So the 52 outcomes are elementary events, and the sum of these elementary events, the sum of probabilities of all these elementary events will be equal to 1.
right? Then another thing, the probability of an event greater than or equal to 0 and less than or equal to 1. It can be equal to 0 and can be equal to 1. So if probability of an event is equal to 0, then E is what? An impossible event. भाई ऐसी इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, जिसका होने का कोई चांस ही नहीं है, इट इज नोन एज एन इम्पॉसिबल इवेंट. एंड इफ the probability of E is equal to 1, then E is a sure event, right? An event which is certain to happen, its probability is equal to 1 and it is known as a sure event. And the probabilities of other events other than impossible event and sure event, their probabilities lie between 0 and 1, right? Next, the probability of E plus probability of not E is equal to 1. किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है? 1 होता है. This not E is represented by E bar. Sometimes we write it as E bar and sometimes we write it as E dash. Both the things will be the same, right? So if E is an event, if E is an event, then not E is called the complement of event E, right? Or we, in other words, can say that E and not E are complementary events. E and not E are what? Complementary events. Correct? Now let us move on to the exercise. So here comes our first question. Probability of an event E plus probability of event not E will be equal to 1. The probability of an event that cannot happen is 0, and such an event is called impossible event. The probability of an event that is certain to happen is 1, and such an event is called sure event. The sum of probabilities of all the elementary events of an experiment is 1. The probability of an event is greater than or equal to 0. मैं एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ. 0 is equal to or आपको यही लिख के आना है. अगर ये एग्जाम में बिल्कुल सेम टू सेम, ये पूरा आप इसे एक इक्वेशन की तरह याद कर लीजिए. इक्वेशन मान लीजिए या इसे रिलेशनशिप मान लीजिए. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड लेस देन और इक्वल टू 1, ये मतलब इसके बीच में और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1. तो ये आना था, लेकिन मैंने इसमें पूरी ही रिलेशनशिप लिख दी है. अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 2. Which of the following experiments have equally likely outcomes? हमें ये बताना है कि किस किस में likely outcomes होंगे
एंड एक्सप्लेन, उसे हमें एक्सप्लेन भी करना है। अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। तो इसमें क्या आएगा? स्टार्ट। इसमें क्या आएगा? अनलाइक आउटकम। क्यों? क्योंकि हम इसमें आएगा अनलाइक आउटकम, क्योंकि लाइक आउटकम्स में क्या होता है कि लाइक आउटकम्स में क्या होगा, अगर मान लीजिए हम कॉइन का लेके चलते हैं, टेल भी आ सकता है और हेड भी आ सकता है। लेकिन कार में अगर आपकी अच्छी खासी कार है, और ज्यादातर हम देखते हैं तो कार हमारी सही होती है, बहुत कम केसेस में ही, ज्यादातर तो हमारी कार चली जाएगी ना, बहुत कम ही ऐसा होगा कि हमारी कार ना चले। तो इसमें क्या होगा? नॉट इक्वली आउटकम्स। A player attempts to shoot a basketball. She or he shoots or misses the shot. अब जो एक बास्केटबॉल का प्लेयर होगा, वो तो एक प्रोफेशनलिस्ट है, तो उसकी तो हर बॉल जाएगी ही। अगर 10 बॉल्स हैं तो उसमें से आउट ऑफ 10 भी मुश्किल से 2 बॉल्स ही ऐसी होंगी जो नहीं जाएंगी। तो ये भी हमारा क्या हुआ? अनलाइक आउटकम। फिर हम देखते हैं थर्ड। अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ट्रायल क्या होता है? तुक्का, जैसे हम कहते हैं हिंदी में हमने तुक्का मारा है, तो उसे हम तुक्का कहते हैं। अगर हमने ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पे तुक्का मारा है, तो उसके अंदर ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो हमें इसकी अनलाइक इवेंट है या लाइकली आउटकम है या अनलाइक आउटकम है, तो इसमें होगा लाइक आउटकम, क्योंकि उसका आंसर राइट भी हो सकता है और रॉन्ग भी। तो ये हो जाएगा लाइकली आउटकम। अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। तो ये तो बॉय या गर्ल कोई भी बॉर्न हो सकता है, इसमें हमें पक्का तो पहले से पता नहीं है। तो ये क्या होगा इसमें? लाइकली आउटकम, कोई भी हो सकता है, बॉय या फिर गर्ल। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of football game? हमें फुटबॉल गेम हो, क्रिकेट गेम हो, क्रिकेट का गेम हो, किसी भी गेम में हम कॉइन ही टॉस क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए, अगर हम मान लीजिए डाई को टॉस करते हैं, तो डाई में हमारे 6 आउटकम्स आएंगे। अब 6 आउटकम से तो हम नहीं पता लगा सकते कि कौन सी टीम को पहले देनी चाहिए चांस। तो इसलिए हमारा सबसे बेस्ट इसमें रहता है कॉइन, क्योंकि कॉइन में एक तो हेड आता है और एक टेल। अब जो भी टीम हेड मांगेगी, अगर उसकी तरफ हेड आएगा तो वो विन करेगी, मतलब उसकी फर्स्ट चांस होगी। अगर उसका टेल आता है तो दूसरे वाले की होगी। तो ये इसलिए हमारा कॉइन बेस्ट कंसीडर किया जाता है, और इसका हम आंसर लिख सकते हैं बिकॉज हेड एंड टेल आर इक्वली likely outcomes. Now we will come to question number 4. फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, which of the following cannot be the probability of an event? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या नहीं हो सकता? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इनमें से कौन से 4 दिए गए हैं पार्ट्स, इनमें से कौन से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं है? तो वो हम ऐसे निकालते हैं कि 0 to 1 के बीच में जो भी नंबर्स होते हैं, जो भी नंबर्स फ्रैक्शन कुछ भी होगा जो 0 to 1 के बीच में आ रहे होते हैं, ठीक है, तो वो हमारा तो दे आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। बट हमें इसमें बताना है कैन नॉट बी, तो जो 0 से नीचे होंगे, ठीक है, वो हमारे नहीं होंगे। तो 2/3 है, ये 0 और 1 के बीच में अगर करता है तो ये है, ठीक है। फिर है 15%, ये भी है। 0.7 ये भी है, लेकिन -1.5 ये नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
This is the fifth and the last question for the day. Here, probability of event is given to be 0.05। ये हमारी प्रोबेबिलिटी दी गई है इवेंट के लिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट? हमें नॉट इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी देखिए कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हम करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इसमें हम करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। एक मिनट में सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। तो इसमें हम कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन नॉन इवेंट। नॉट इवेंट को हम इससे सिंबलाइज करते हैं। मैं एक मिनट सिंबल वाला लगा के दिखाता हूँ। उसके ऊपर बाल लगा देते हैं। अगर हम बाल लगा दे रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, नॉट ई। ओके, एक मिनट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई हो जाएगा क्या, मैंने अभी बताया था, वो हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो क्या आएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05। इस तो टोटल हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, 0.95। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो के लिए। सो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। And please don't forget to like, share and subscribe my channel. And thank you for watching.